Hello students, welcome to our YouTube channel. This is lecture 5 in the series of computer science lectures for class 11th. Today we are starting a new chapter. The name of the chapter is Software Concepts. आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट्स, जो कि NCERT की बुक में यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है. एंड द टॉपिक्स दैट वी विल कवर टुडे आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, classification of softwares, what is an operating system, and processor management. So in today's class we will learn different types of software. We will start from the basic definition of hardware and software, and then we will try to understand how do we classify software into three different categories. We will take an overview of operating system concepts, where we will learn what is the meaning and need of the operating system. We will cover processor management, which is basically a function of operating system. In processor management, we will see what is the meaning of scheduling, and we will cover different types of schedulings. So let's start with first topic, that is hardware and software. We all are aware of what is a hardware and what is a software. Basically, everything which is physical in a computer system is a hardware. Everything that is physical is a hardware. So can I say that the cases, computer cases, or the plastic, it is hardware? No. Everything that is functional and physical are hardware, like keyboard, like mouse, CPU, circuits, motherboard. All these things are hardware, and these are all physical, means we can touch them, we can see them. Software are all the codes, all the instructions, all the signals, all these things which are not physical but necessary for working are called software. Even the computer virus is also a type of software. So I hope that now the definition and the meaning of hardware and software is clear to you. So the very important thing in this slide is both are equally important for working of computer system. What both? Hardware and software. Hardware and software are equally important for working of computer system. How? See, if you have just a software in a CD and not the computer, then you think that that software is helpful or working anything? No, that is not doing anything. Similarly, if you have just the hardware, just the computer without a software, then it is again of no use to you. So we understand that hardware and software both are equally important for working of the computer system. Next is types of software. In types of software, we try to classify softwares into different classes according to their interaction with hardware and what kind of services do they provide to us. So first category is system software. System software directly control and coordinate hardware and operating of computer. System software basically उस तरह का सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर की ऑपरेटिंग के लिए एसेंशियल है, मतलब उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, उसे हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे CPU को, ALU को, मेमोरी को, इन्हें डायरेक्टली कंट्रोल करता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स द प्रोग्राम्स और द सॉफ्टवेयर्स which are used for specific purpose or tasks. What is the meaning of these specific purposes? See, अगर आपके पास MS Word है या MS Excel है तो आप उनका यूज़ किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप Microsoft Word खोल के उसमें आप मोबाइल गेम खेलने लग जाएं या आप उसमें अपना काउंटर स्ट्राइक खेलने लग जाएं. ऐसा तो नहीं है. These all softwares are of specific kind. Similarly, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी ना बना रहे हैं. So all the softwares which have specific purpose, which are used for specific tasks,
आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जिनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं उन्हें हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा MS वर्ड हो गया, हमारे वेब ब्राउज़र्स हो गए, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, जैसे हमारे वीडियो गेम्स हो गए, जैसे हमारे पेंट हो गया, जितने भी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी कंप्यूटर में वो सब होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। थर्ड कैटेगरी इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर एंड कीप्स कंप्यूटर रनिंग स्मूथली। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए और कंप्यूटर को स्मूथली रन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। जैसे हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो गया। डिस्क डिफ्रैगमेंटर का अगर हम बोलेंगे कि आप कोई स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ करते हो, क्या आप उससे डॉक्यूमेंट बना रहे हो? नहीं। क्या आप उससे गेम खेल रहे हो? नहीं। लेकिन उसका यूज़ करना पड़ता है ताकि हम एक फ्री स्पेस को एक जगह पे इकट्ठा कर पाएँ और हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रॉपरली रन कर पाएँ। सिमिलरली हमारा एंटीवायरस है। एंटीवायरस का काम भी सेम यही है, कंप्यूटर को मेंटेन करना जिससे कि कंप्यूटर हमारा स्मूथली रन करता रहे। सो आई होप दैट नाउ all the three kinds of software, system software, application software and utility software are clear to you. And if anyone asks you what is the meaning of all these three softwares, you will be able to provide an answer. What is an operating system? See, before we start, I must tell you that operating system is a kind of system software. In system software, we saw that system softwares are kind of softwares which interact and control the system hardware. So operating system is a system software. Operating system controls and supervises hardware of a computer. What kind of hardware? See, CPU, CU, ALU and memory registers, these all are also the hardware. And our operating system controls which process the CPU will process, or which kind of operation will be done by the CPU. So basically an operating system is controlling and supervising the hardware of the computer. Provides a base platform on which application software can run. If there is no operating system, can you run the application programs on it? The answer is no. See, अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप गेम्स किस में इंस्टॉल कर पाओगे? तो आप वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें आप किस पे इंस्टॉल कर पाओगे? तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे कि बाकी की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन कर सकें। एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। User cannot directly interact with hardware without the use of operating system. अगर मैं कंप्यूटर को बंद रखता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाए या फिर एक सम किया जाए 1+2 करके, तो क्या वो रन हो पाएगा? क्या आप कहाँ पे टाइप करोगे? आप कहाँ पे कमांड दोगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर में। अब इंटरफेस मतलब होता क्या है? कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि इंटरफेस का मतलब क्या होता है। इंटरफेस मतलब कि एक तरह का एक पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे यूज़र भी इंटरेक्ट कर रहा है और मशीन भी इंटरेक्ट कर रही है। बेसिकली ए पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इज़ एन इंटरफेस। ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या दो यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम इंटरफेस कहते हैं इन जनरल टर्म्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर कंप्यूटर को कोई आउटपुट देना है तो वो तभी दे पाएगा जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यूज़र को कुछ इनपुट देना है तो वो तभी दे पाएगा जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। Manages all hardware, software, input, output, flow of information and processing activities in computer. Basically जो ऊपर हमने समझा वही ये सब कुछ है। इसका मतलब है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स होते हैं
और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है. बेसिकली if there is a computer without an operating system, so it is not more than a box. अगर एक कंप्यूटर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो एक डब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल करते हैं, उसी के बाद हम कंप्यूटर का प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे. इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, flow of information and processing activities in a computer. Operating system provides services to application software, programmers and users. So application जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. हाउ? बाय प्रोवाइडिंग ए बेस प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड सर्विस टू प्रोग्रामर्स so that programmers can write programs and can execute those programs on the computer. Provide services to users by providing an interface. So I hope आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता चल गया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस भी पता चल गए होंगे. और अगर मुझे इसे एक शॉर्ट समरी में इस पूरी स्लाइड को अगर सम अप करना हो, then I will say that operating system is the system software that controls and supervises the hardware of computer and provides a base platform on which application softwares can run. Basically these two lines. Okay, so in the next slide, functions of operating system. Operating system has various functions. All these are functions of operating system, but in our book, in our syllabus, only 4 functions are important: file management, memory management, device management and processor management. We will cover each one of these one by one in detail, but I would suggest you to take a screenshot of this slide so that you can understand what is the functions of an operating system. Operating system क्या क्या करता है, operating system की ज़रूरत क्यों होती है एक कंप्यूटर सिस्टम में, वो सब इस स्लाइड में एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है. लेकिन ये सारे फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 4 फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इन पे मैंने रेड डॉट लगा रखा है: फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट. एंड इन दिस लेक्चर वी विल कवर प्रोसेसर मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट प्रोसेसर मैनेजमेंट. बिफोर वी स्टार्ट, let me try to explain you in layman terms. हमारे पास एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हमारा प्रोसेसर होता है, जिसे कि हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. माइक्रो प्रोसेसर या CPU एक बहुत फास्ट डिवाइस है. ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है. लेकिन जो डिवाइसेस हैं, जो हमारी जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करने की, वो थोड़ी स्लो होती हैं. सो अगर एक प्रोसेस हम इसे देते हैं और वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट को प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उतनी देर के लिए प्रोसेसर जो है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है. ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि चलो एक बस है, ठीक है, जो एक सुपर फास्ट बस है, हम बोलते हैं कि यार हमें बस से ट्रैवल करना है और हमें बस तक पहुंचने में ही अगर 2 घंटे लग जाएं, जितनी देर में कि बस 2-3 राउंड लगा सकती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बस का टाइम वेस्ट हो रहा है. सो सिमिलरली मैनेजमेंट करते हैं हम प्रोसेसर का. मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि प्रोसेसर जो है वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी का यूज़ कर पाए, अच्छी तरह से यूज़ कर पाए, और ये हम करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट के थ्रू. प्रोसेसर मैनेजमेंट में हम बहुत सारे प्रोसेसेस CPU को अलॉट करते हैं, जिससे कि जब कोई प्रोसेस या कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, उतनी देर के लिए कोई दूसरा प्रोसेस वहाँ पे प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो जाए, और इसी को हम कहते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ऑफ CPU टाइम अलॉटमेंट टू डिफरेंट प्रोसेसेस इज नोन एज शेड्यूलिंग. अब ये जो मैनेजमेंट होता है CPU का, इसे हम शेड्यूलिंग कहते हैं. शेड्यूलिंग का मतलब अगर हम लेमन टर्म्स में बोलें, जनरल टर्म्स में, कि शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, तो शेड्यूलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइन में लगाना. मतलब कैसे कैसे कोई प्रोसेस जाएगा,
कैसे कैसे कोई जो प्रोसेस है उसे हम किस तरह से एग्जीक्यूट कराएंगे, इसे हम कहेंगे शेड्यूलिंग। तो CPU को हम मैनेज करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस दे सकते हैं जिससे कि CPU का टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज हो। एंड द मैनेजमेंट ऑफ CPU टाइम अलॉटमेंट इज़ नोन एज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। In priority scheduling, allotment of CPU time is according to priority assigned to that task. And in round robin, each task is allotted a fixed time to execute. Once the time is over, next task is allotted to CPU. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे टास्क हैं, एक क्यू बन जाती है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे टास्क हम रखते हैं और हर एक टास्क को एक प्रायोरिटी दे देते हैं कि प्रायोरिटी या अर्जेंसी जिसे हम लेमन टर्म्स में कहते हैं, ठीक है। जिस टास्क की प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा होगी उस टास्क को जल्दी से जल्दी पहले एग्जीक्यूट करने का चांस मिलेगा। जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई आपके पास दो काम है, पहला तो ये है कि मेरे लिए पानी लेके आओ और दूसरा ये है कि गैस जो है वो जली रह गई है उसे बंद करके आओ। तो आप पहले क्या करोगे? आप देखोगे कि प्रायोरिटी किस चीज़ की ज़्यादा है, कौन सा काम ऐसा है जिसे कि ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होना चाहिए। तो आप बोलोगे नहीं, पहले गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो भी उस पर खाना रखा है वो जल सकता है, या हो सकता है कि अगर मिल्क है तो वो स्पिल हो सकता है। तो हम किसी भी बहुत सारे टास्क होते हैं, उनमें से हम हर एक टास्क को कुछ प्रायोरिटी देते हैं और जिस टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसे हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। और राउंड रॉबिन में थोड़ा सा अलग हिसाब है। राउंड रॉबिन में ऐसा होता है कि हम एक टाइम क्वांटम ले लेते हैं या हम एक टाइम ले लेते हैं कि भाई इतने टाइम के लिए हर एक प्रोसेस रन होगा। इतने में हमें सपोज़ कि हमारे पास 10 टास्क हैं, या ऐसा बोलें कि हमारे पास 10 लोगों को हमने लाइन में खड़ा कर रखा है उनकी शिकायतें सुनने के लिए, और हमने बोला है कि भाई आप लोगों के पास 5-5 मिनट हैं, 5 मिनट में आप जितनी शिकायत सुना सकते हो सुनाओ, और अगर उतने में नहीं होती तो आप फिर से लाइन के एंड में लग जाओ, अगर ख़त्म हो जाती है तो वेल एंड गुड। तो इस तरह की शेड्यूलिंग को हम कहेंगे राउंड रॉबिन। इसे मैं अभी डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं, पहले प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। ईच टास्क इज असाइंड अ प्रायोरिटी इफ देयर आर मल्टीपल टास्क्स, डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क्स, then each task will be assigned a priority like high priority, low priority, mid priority, this kind of priority. Priority is just like urgency. Allotment of CPU time is done on basis of priority of the task. Means if there is a task whose priority is higher than the other task, then the task with higher priority will be assigned to CPU. अगर 2 टास्क हैं, उनमें से एक टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा है और एक टास्क की कम है, तो हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी वाले टास्क को पहले CPU टाइम अलॉट कर दिया जाएगा। द टास्क विद हायर प्रायोरिटी विल बी गिवन CPU बिफोर अ प्रोग्राम विद लोअर प्रायोरिटी। सेम CPU एग्जीक्यूट्स द टास्क अंटिल इट इज़ कंप्लीटेड और इंटरप्टेड। अब हायर प्रायोरिटी का जो टास्क दिया है वो तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता या जब तक इंटरप्ट नहीं हो जाता। इंटरप्ट कैसे हो सकता है? इंटरप्ट हो सकता है कि अगर कोई नया टास्क आया जिसकी प्रायोरिटी अभी एग्जीक्यूट हो रहे टास्क से भी ज़्यादा है, तो सीधा हायर प्रायोरिटी वाले टास्क के पास CPU चले जाएगा। या फिर अगर हमारे कोई पावर फेलियर या अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो भी इंटरप्ट हो सकता है। सो if a task is assigned to CPU, it will keep on executing until the task is completed or interrupted. कोई लो प्रायोरिटी का टास्क है वो CPU को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि हाई प्रायोरिटी का टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। ड्रॉबैक, अब इसके ड्रॉबैक आपको समझ में आ गया होगा। स्मॉलर टास्क विद लेस प्रायोरिटी हैव टू वेट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन when a long task with high priority is being executed. Suppose हमारे पास 3-4 टास्क हैं। एक टास्क जो हायर प्रायोरिटी का है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, वो एक बहुत लंबा टास्क है, उसमें कुछ घंटे तक CPU लगता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि बहुत छोटे हैं, कुछ सेकंड्स के टास्क हैं,
लेकिन उनकी प्रायोरिटी स्मॉल है। तो होना तो ऐसा चाहिए कि हमें पहले स्मॉल टास्क को निपटा लेना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे से टास्क हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यही इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि हायर प्रायोरिटी का टास्क अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो भी वही चलेगा, और स्मॉल ड्यूरेशन के टास्क जो कि लेस प्रायोरिटी के हैं उन्हें एग्जीक्यूट होने का मौका नहीं मिलेगा। और एक और मैं इसे बेटर एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ कि आपके पास दो टास्क हैं, एक हाई प्रायोरिटी है, एक लो प्रायोरिटी है। हाई प्रायोरिटी वाले को 1 घंटे तक CPU चाहिए, लो प्रायोरिटी वाले को 1 मिनट तक चाहिए। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हाई प्रायोरिटी रन होगा, अब 1 घंटे तक वही रन होता रहेगा। अब इतनी देर में एक और टास्क आ गया जिसकी प्रायोरिटी लो टास्क वाले से ज़्यादा है। तो लो टास्क जिसे 1 ही मिनट चाहिए था वो फिर से लाइन में लग गया, फिर से वो लास्ट में पहुंच गया, उसे फिर से चांस नहीं मिला। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। इस ड्राइंग के थ्रू आपको शायद समझ में आ जाए। सबसे पहला है हमारे पास P4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। P4 की प्रायोरिटी हाई है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। P4 से स्टार्ट हुआ, अब आए तो सभी लाइन में थे। P1 सबसे पहले आया था, P2 उसके बाद आया था, P3 आया था, फिर P4, P5, P6, लेकिन सबसे पहले सबसे हाईएस्ट जिसकी प्रायोरिटी होगी वो एग्जीक्यूट होगा। इसलिए P4 जो कि बीच में था, 4th नंबर पे था, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। देन P6 क्योंकि P6 की प्रायोरिटी नेक्स्ट है। देन P3 क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 3 है। तो ये एक ग्राफ के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो फ्लो चल रहा है कि कौन से टास्क से कौन सा टास्क जा रहा है और ये जो प्रायोरिटीज़ हैं इन्हें आप नोट डाउन कीजिए। सी आपको हो सकता है कि इसमें कन्फ्यूज़न आए कि 1 हाईएस्ट है या 6 हाईएस्ट है। देन आई वुड टेल यू कि जनरली जो भी टास्क जनरली हम प्रायोरिटी जो होती है उसे हम लोअर नंबर पे हाईएस्ट मानते हैं। अगर किसी टास्क का नंबर लो है तो उसकी प्रायोरिटी हाई मानी जाती है। नेक्स्ट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ईच टास्क इज गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। सारे टास्क हैं लाइन में, सबको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। जैसे हमने देखा था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में कि किसी को 1 घंटा चाहिए, किसी को 1 मिनट चाहिए, किसी को 5 मिनट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हर एक टास्क को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर उतने टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये क्यू में लास्ट में लग जाएंगी और फिर से जब इनका नंबर आएगा तो उतनी फिक्स्ड अमाउंट के लिए फिर से एग्जीक्यूट करेगा। CPU executes the task until the fixed time is over. Either the time is over, either the task is completed before time is completed, or CPU is interrupted. If task is not completed, it is placed at the last of the queue and waits for its turn. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कई सारे टास्क हैं जिनमें से किसी को 1 घंटे एग्जीक्यूट करना है, किसी को 10 मिनट एग्जीक्यूट करना है, किसी को 1 मिनट एग्जीक्यूट करना है, और हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है 5 मिनट कि हम हर एक टास्क को केवल 5 मिनट ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला टास्क होगा उसे हम 5 मिनट तक एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो 5 मिनट में फिनिश हो गया, 5 मिनट से पहले ही फिनिश हो गया, तो हम नेक्स्ट टास्क पे जाएंगे और उसे 5 मिनट तक के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर वो 5 मिनट में कंप्लीट नहीं हुआ था तो भी हम दूसरे टास्क पे पहुंच जाएंगे और उसे हम जो इनकम्प्लीट टास्क था उसे हम लास्ट में भेज देंगे और उसका नंबर आएगा सबसे लास्ट में। और ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि टाइम ओवर ना हो जाए, टास्क कंप्लीट ना हो जाए या CPU को कोई इंटरप्शन ना मिले। So this is like round robin. Our processing execution started from P1. P1 executed for T time. Then the flow of execution goes to P2. P2 is executed for T time. Then it is going like this. Suppose P1 was not completed in time T.
So it will be placed in the last of the queue and it will be executed again after P6. तो इस तरह से एक साइकिल चलती रहेगी, इसीलिए इसे राउंड रॉबिन कहा जाता है, राउंड रॉबिन. एडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन, हमारी जो भी ड्रॉबैक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के थे वही हमारे राउंड रॉबिन के एडवांटेज हैं. हर एक टास्क को एग्जीक्यूट होने का चांस मिलता है और हमारे नेटवर्क इन्वायरमेंट्स या फिर हमारे मल्टीटास्किंग जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें राउंड रॉबिन का यूज़ किया जाता है. सो आवर lecture for today is complete, and this is the knowledge check slide where we have provided some of the questions. These questions are of the textbook and few of them are important questions as per the exam perspective. I would suggest you to try all these questions and provide the answer in the